ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਰਣੰ ਵਿਸਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਵਨੰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਰਣ ਲੱਭਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੂਰਬ ਲਿਖਣ ਮਰਣੰ ਵਿਸਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਵਨੰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣ ਲੱਭਯੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਲੱਭਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੂਰਬ ਲਿਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਤਨੇਮ ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗਾਥਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰਨ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪੂਰਬਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਨ ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਰਕਤ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੀਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ, ਚਾਲਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਿਆ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਣਿਆ, ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ, ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਣਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮੌਤ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿੰਸ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕਿਰਸਾਨ ਗੋਵੈ ਕਿਰਸਾਣੀ, ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾੜ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦਰਸਾਈ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖੌਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਲ ਖੌਂ ਮੁਆ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਆ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੌਮੇ ਮਰੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਖੌਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਖੌਂ ਮੁਆ,
पातशाह भया आनंद मोह मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद। एक वो मौत है जिसनू हजूर गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कह लगे साध संग जे खौमै मारी नानक ताको मिले मुरारी। अपने अंदर दी खौ नू मार देना, खौ नू मेट देना, एक ये भी मौत है। अज जिहड़ा सतगुरु ने कृपा भरिया बचन कहे कि तीसरी तरह की मौत होवे कि आदमी सुनदा भी है, बोलदा भी है, वेखदा ते श्वास भी लैंदा है, पर जदों इन्ना कुछ प्राप्त करके भी बंदे नूं रब दी याद सिमरन भुल जाए ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी कहंदी है असल विच जिउंदा नहीं, वो तां चलदी फिरदी एक लाश है। ठीक है, गुणां दा खजाना होवेगा दुनियावी तौर ते, पर आत्मिक तौर ते वो मर चुका है। हजूर दे पहला असीं इन्ना को विशा लेना कि जिहड़ी मौत है रब नूं भुल जाना, अंदर मर जाता है। हजूर ने एक अमृत बचन के सलोक आप जी ने कई बारी वो सुनिया होने, दातार जी ने उस सलोक विच शिखर दे जिहड़े गुण ने उन्हां नूं बयान कीता है ते नाल ये गल कह दित्ती जे किसी बंदे कोल इन्ने गुण होण ते जे परमात्मा दी याद नहीं, इन्ना गुणवान भी बंदा गुरु दी नजर विच मुर्दा है। महाराज वो गुण केड़े हजूर ने उत्थे पहला शब्द वरते अत। देखो श्लोक अत तो शुरू हुंदा है, अत सुंदर। हुण जिहड़ा अत शब्द है ये असीं अगे जिन्ने शब्द आने ने उन्हां नाल लाई जाणे। अत शब्द ने सुंदर नाल भी लगना है, कुलीन नाल भी लगना है, चतुर नाल भी लगना है। अत का आखिरी अर्थ जिस दियां सारियां हद्दां मुक जाण, जिहदा कोई भी दुनिया विच मुकाबला नहीं। अत सुंदर। जे किसी इंसान को अत का सुहापन होवे, उहदे शरीर की चमड़ी अत की सुंदर होवे। साहब कहते ने कुलीन, उस बंदे की कुल भी बड़ी उच्ची होवे, कोई छोटी मोटी कुल नाल संबंधित नहीं, उच्ची कुल विच ओहदा जन्म होवे, अत दा सोहना होवे, उच्ची कुल होवे ते कल्ला सुहापन ते कुल ही चंगी नहीं, उस बंदे नूं अंदर दी चातुरता, अंदर दी सियाणप, चलाकी भी आउंदी होवे। तीजा गुण ओहदे कोले होवे अत सुंदर, कुलीन, चतुर ते अगला शब्द है मुख ज्ञानी ते जबान तो अपनी गल लोकां विच कह भी सकदा होवे। कई बारी असीं देखने हैं कुछ लोकां कोल सुंदरता भी शरीर दी हुंदी है, कुल भी चंगी विच पैदा हुंदे ने, उन्हां नूं अपनी गल करन दा ढंग नहीं आउंदा, दुनिया भी जीण दा ढंग नहीं आउंदा। इहो जिहे सुंदर बंदियां ने लोक ही शब्द वरदे ने, छड्डो इह तां निरा मिट्टी दा माधुक है, इह तां मिट्टी दा एक पुतला है, क्योंकि इहदी कुल चंगी, इहदा रूप सुंदर, तन चंगा, पर इहदे कोल लियाकत अकल ते कोई नहीं। हजूर ने कहा अत सुंदर, कुलीन, चतुर, मुख ज्ञानी, धनवंत, सियाणा होवे ते जबान तो ज्ञान की गल अपनी गल मना सके। सच्चे पातशाह कहते ने प्यारिया जे इन्ने गुण होण ते लोकां विच बंदा वो पूजिया जांदा है। सच्चे पातशाह रब की दरगाह विच इहो जिहे कुल वाले नूं, हसीन नूं, चलाक नूं, विद्वान नूं थां नहीं। कह लगे नहीं, असल विच परमात्मा की नजर विच मुर्दा है। अत सुंदर, कुलीन, चतुर, मुख ज्ञानी, धनवंत, मृतक कहिया नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जे साई नाल प्रीत नहीं, सच जानो एक तीजी तरह का मरना है जिदे अंदर परमात्मा की, वाहिगुरु जी की याद नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों कुछ प्रमाण आपां होर लईए कि असल विच अंदरों जिहड़ा मर जाता है उहदे कोल दुनिया के जितने मर्जी सुख होण, प्यारिओ चेते रखियो गुरु जी की नज़र विच उन्हां सुखां की कोई कीमत नहीं। एक उदाहरण मैं आप जी के समक्ष रखा। धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जिन्हां नूं भाई गुरदास दूजे ने अष्टम बलबीरे के नाम नाल मुखातब किया अदब लई। अष्टम बलबीरा 8वें गुरुदेव धन गुरु हरकृष्ण साहिब जिन्हां नूं असीं भावना, शरधा, अकीदत दे नाल बाला प्रीतम भी कहने। जिस धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी के संबंधी धन गुरु गोबिंद सिंह कृपालू जी ने एक अमृत बचन क्या है। देखो प्यारिओ, वो तो असीं बड़ी बड़ी जदों भी अरदास करने ते वो पढ़ने, एक गल चेते रखिए कि जदों आपां अरदास कर रहे हैं, नितनेम की भावें निजी करिए, सवेरे शाम कर रहे हैं
यत्न करिया करिए। मैं बेनती कर रहा जी निजी अरदास आप करने हैं या गुरु कर करने, छोटी शब्द भी आप कई बार लंगर छक के कर लेने ਜਾਂ गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र सेवा तो बाद भी छोटी अरदास की जा सकती, कोई शक नहीं, क्योंकि उस तो पहला असीं वड्डी अरदास कर चुके हैं। पर यह नहीं कि जे आप रोज ही केवल नितनेम किया, 2 शब्दों की अरदास की, एक गुरमुख प्यारे के सामने किसी अरदास की, खास करके भाई वीर सिंह जी को उत्थे वो भुल गया, चरखड़ियां ते चढ़े, बंद बंद कटाए। भाई साहब ने एक शब्द किया अरदास करने वाले बीबा जे आपा चरखड़ी ते चढ़े होइए ते की होवे। कहन लगे दिमाग घूम जाता है जो बंदे नूं चरखड़ी ते चाढ़ दे, पहला चरखड़ी ते चाढ़ के उन्होंने घुमाया जाता है, उन्हें इन्ना जोर का चक्कर इसके उत्ते दिता जाता है, बंदा थोड़ा जिहा कोई घुमा दे, चक्कर आम ते अंदर दा दिमाग जिहड़ा वो शदाइयां की तरह हो जाता है, दिमाग चकरा जाता है। ते जिन्ना इन्ने चक्कर खा के भी अकाल अकाल किया, आपां उन्हां दा नाम ही अरदास विच नहीं लै सकते, उन्हां शहीदां नूं उन्हां महापुरुषां नूं आपां याद नहीं कर सकते। बड़े सोहने उन्होंने मैनूं वो शब्द बड़े अंदर नूं पाए कि घट्टो घट उस महान शहीदां नूं आपां याद तां करिए। खैर जिहड़ी मैं अर्ज कर रहा, धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने जदों रहमत करके सानू अरदास विच पहली पौड़ी बख्शी है, ते गुरु हरकृष्ण साहिब जी का जदों नाम हुंदा है ते धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह उत्ते मेहर करते हैं। उत्थे हजूर ने 2 तरीकों नाल गुरु हरकृष्ण साहिब जी की सिफत के वचन कहे। कहते गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जिन्हां ने इन्हां दे दीदार पाए, उन्हां दे दुख कटे गए। कई बार असीं कहने कि जी गुरु नूं देखण नाल दुख कटे जांदे ने, बिल्कुल कटे जांदे ने। जे तेरी नजर वाकई गुरु नूं पहचानण वाली होवे, समर्थ गुरु है। जदों हजूर दिल्ली गए, मैं विस्तार विच ना जावां, उत्थे राणा राजा जैसे दी राणी गोलियां वाले कपड़े पा के बैठी सी। मन में इन्नी शंका उपजिया कि यह 7 साल की उम्र है, इस उम्र विच ये रूहानियत दे विच भुगे हुए ने, गुरु नानक साहब जी की जोत के मालक ही हो सकते हैं। थोड़ा जिहा शंका उपजिया ते मैले गोलियां वाले कपड़े पा के बैठ गई। गोलियां भी जा बैठी। सच्चे पातशाह जी अपने हाथ में एक सोटी पकड़ के रखते सन, जिन्हों छड़ी भी आप कहते हैं। असल में केवल छड़ी नहीं थी, उस छड़ी राही मेरे गुरु हरकृष्ण साहब की कृपा वापरती सी ते बोले ते गुंगा भी गीता दे अर्थ कर लग पे सन। छड़ी हाथ में पकड़ी ते जदों दिल्ली पहुंचे, बीबियां जिथे बैठियां सन राणी एक एक दे सिर ते छड़ी रखी गए, नाल शब्द कही गए, तू भी पटरानी नहीं, तू भी पटरानी नहीं। ते जदों सच्ची मुच्ची उस राणी कोल आए जिहड़ी पटरानी जिन्हें गोलियां वाले बस्तर पाए, उहदे सिर ते छड़ी रख के क्या कह लगे, पूर्वले कर्मा करके पटरानी बनीए, नाम ना जपिया ते गोलियां तो लखित जीवन बनेगा। नाले गुरु नूं परखीदा नहीं, गुरु ते परख विचों निकल जाता है, जे गुरु परख लै ते फिर की बनेगा। ध्यान दिया जी, असीं गुरु नूं हुण भी परखने ने कि सच्चे पातशाह जे तू साडा काम करे सी तां तैनूं मन्नीए, जे ना करे दा मतलब असीं ना मन्नीए। नहीं, गुरु नूं कदी नहीं परखना चाहिए। जदों मत्थे टेक दिता है, जदों अपने आप नूं समर्पित ही कर दिता है, उदों बाद परखण दी गल की। हजूर कृपालू जी उत्थे गए ते धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने उन्हां भी 2 शब्द वरते ने, कहंदे श्री हरकृष्ण ध्याइए, एक दिखे वे दूजा ध्याइए। अज असीं कहना सी भी उदों तां दिखे, हुण किवें दिखीए। सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह कहते ने, फरमाउंदे ने, जे तू दिखे नहीं, तू अपनी रसना तो श्री हरकृष्ण साहिब नूं ध्यान है ते तेरे दुख कटे जा। ध्यान ते दिखे 2 शब्द ने, श्री हरकृष्ण ध्याइए, जिस दिठा सब दुख जाए। जिन्होंने देख के ध्यान ना दुख जाते हैं। आप अपने विषय से आइए कि बाहर का ठाठ, बाहर का सुख, बाहर दियां कोठियां, बाहर का ऐशवर्ग सिख की असली जिंदगी है। औरंग दे बूहे ते खलोता रहा है। धन गुरु हरकृष्ण साहब ने एको गल कही सी कि दिल्ली आए हाँ, पिता गुरु ने को हुक्म किया है, मैं मलेश को दर्शन देना। भावें बादशाह दिल्ली का
हिंदुस्तान का बादशाह है, पर असी इन्हों दर्शन नहीं देने, इस मलेश के मस्तक नहीं लगना। उस वेले औरंगजेब ने यह अपने वालों बेनती भेजी राजा जय सिंह राही कि महाराज तुसी कृपा करो, मेरे लिए कोई बचन कर दिओ। उन्होंने यह सी बादशाह नूं अक्सर हुंदा है कि किसी धर्मात्मा की मोहर साडे ते लग जाए तो परच के लोकां भी जाना सुखैन हो जाए, इनू तां फलाने महापुरुष ने अपनी असीस दिती हुई है। पर जिहड़ा अंदरों रब दे रंग विच रता है ना, सिते रखियो साईं तो बिना उन्होंने कदी किसी की परवाह नहीं। हजूर कृपालू सच्चे पातशाह जी नूं जदों कहा गया कि महाराज उहदे कोल फौजा, उहदे कोल राज, उहदे कोल भाग, उहदे कोल ऐशवर्ग, मेरे सच्चे पातशाह जी ने नाल ही कृपा कर दी। मांझ राग का एक श्लोक है, उस श्लोक के नाल पौड़ी है। हजूर ने पहला श्लोक पढ़िया, कहन लगे वो जींदा नहीं सो जीविया जिस मन वसिया सोए। असल विच ओ बंदा जिउंदा जिहदे अंदर परमात्मा का नाम वस गया है। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवे कोई। बाकी बंदे शरीरक तौर पर जिउंदे ने पर आत्मक तौर पर तो मुर्दे ने। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवे कोई। जे जीवे जे बंदा जिउंदा होवे पत लथी जाए, उस बंदे दे अंदरों वकार रोज ठगण रब नूं भुला दे, आत्मक मौत मरदा होवे। जे जीवे पत लथी जाए, की होया राजा होवेगा सब हराम जेता किछ खाए। कहने जो कुछ खांदा है ते इहदे अर्थ असीं बाहर मुखी भी लैने हैं। जे तेरे कोल दुनिया दे सारे सुख ने ते तेरी पत मिट्टी विच रुली पई है ते तेरी जिंदगी खराब है। शायद कृपालू जी दे अमृत बचना बचावा अगे दातार जी ने पौड़ी कही, उस पौड़ी नूं जदों असीं पढ़ने हैं, देखो सिख ने आत्मक तौर पर जीना कीती है। इहदा भाव ये भी ना समझना कि बाहर दे सुखां नाल सिख दा संबंध नहीं, पर सब तो वध संबंध इहदा अंदर दे सुख नाल है, अंदर दे नाम नाल, अंदर दे जीवन नाल। उत्ते हजूर ने कहा नूं पौड़ी सुना दिओ। साडे घर विचों इहदे प्रति ये शब्द ने, क्या खादा है क्या पहनदा होए, की करेगा तू भोजन कीमती पकवान खाने, की करेगा तन ते सोने तो सोना कपड़ा पा के तू तुरे। वैसे दाता जी ने ना साडे खान ते साडे पान का भी सानू अंदर का जीवन दिता है। हुण असीं जदों खाने कोई सज्जन मिठे नूं बहुत लाई करदे ने, कोई बंदे सलूनी चीज नूं पसंद करदे ने, कोई खट लस्सी नूं करदे ने, कोई 36 प्रकार के भोजन पसंद करदे ने। ते चेते रखियो 36 प्रकार के भोजन की गिनती विच मांस कोई नहीं। कल देखियो महान कोश 36 प्रकार विच मांस नहीं गिनिया गया। हुण हजूर ने बाणी विच क्या कह लगे, जी सदके तू सलोने खा, तू मिठे खा, तू खट तुरसी खा। ये तेरी फिजिकल खुराक है, पर अंदर की तेरी खुराक पता की है, सब रस मिठा मने आत्मक जीवन है। जदों तू परमेश्वर के नाम नूं हुक्म नूं मन लै, उदों सच जानी तेरे अंदर मिठास का रस आवेगा। सुनिए सालोने, जदों तू गुरु के बचना नूं भावना नाल सुने, शब्द नूं नाम नूं सुने, उदों समझी तेरे सलोने का रस है, ये तेरी आत्मक खुराक है। सब रस मिठा मनिया सुनिया सालोने खट तुलसी मुख बोलना। जदों तू अपने मुख तो वाहिगुरु वाहिगुरु बोले, उदों सच जानी तेनू खट तुलसी ये खट्टा मीठा स्वाद आवेगा। खट तुलसी मुख बोलना। मारन नाद की है, इत्थे मारन का आखिरी अर्थ है मसाला पाना, नाद का अर्थ है कीर्तन। जदों तू बैठ के उच्ची आवाज विच कीर्तन करें, सच जानी उदों तेरे आत्मक भोजन विच ये मसाला पैंदा पिया। ਇਹਦਾ मतलब बाहर की खुराक नाल साडे अंदर की भी कोई खुराक है। सब रस मिठा मनिया सुनिया सालोने खट तुलसी मुख बोलना। मारन नाद किए 36 अमृत पाओ एक। जदों तू एक गुरु नूं प्रेम कर लग पै, 36 प्रकार के भोजन ने 36 अमृत पाओ एक। जाको नदर करे बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादा तन पीड़िया मन में चले बेकार। तेरी आत्म खुराक भी है। देखो असी फिर कपड़े पाने, कोई चिट्टे रंग का, कोई रत्ते रंग का, कोई नीले रंग का। साहब ने कहा रत्ता पहनन मन रत्ता प्यारिया, जे तेनू लाल कपड़े सुबह कपड़े पान का चाह है, देख अपने अंदर नाम विच रंग दे, ये अंदर का कपड़ा है।
रता पहनन मन रता सुपेदी सतदान नीली शाही कदा करनी पैरन पैर ध्यान। प्यारिया तू चंगे आचरण नूं धारण कर, तू चिट्टे वस्त्र पा, नीली पोशाक जे पाई आ अंदर दी मैल नूं कट ले, ये नीली पोशाक बन जाएगी। प्यारिया देख जे तू लम्मा चोला पाया चोगा पा के तुरे सिर तो पैरों तक रब दे ध्यान भी जुड़दा, सच जानी ये तेरे अंदर दी पोशाक होवेगी। साहब ने बख्शिश की। मैं जी बेनती कर रहा कि बाहर दे जीवन तो बिना भी एक जीवन है, ते जे बंदा आत्मिक जीवन नहीं जींदा बाहर दे जीवन नूं गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कहा कि औरंगजेब नूं ये पौड़ी सुना दिओ कि क्या खादा है क्या पैदा होए, जामा नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्या कौगुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या कपड़ क्या शेर सुखाली, कीजै भोग विलास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास। ठीक है महल्ला विच तेरे कोल फौजी ने रानियां ने सब कुछ है, पर नानक सच्चे नाम बिन सबे टोल विनाश। जे आत्मिक जीवन नहीं ते तेरे बाहर दे जितने भी अठाठ ने ये सारियां दी गुरु दी रब दी कचहरी विच कोई कीमत नहीं। आत्मिक जीवन की है देखो, असी शरीर नाल देखने जो जीना है उदो अखा खोल के देखने, कन्ना नाल खोल के गल सुनने। भाई गुरदास जी मेहर करते हैं कहते जिन्हें आत्मिक जीवन जीना है उन्हें इंद्रियां की ओनू उस तरह की वरतों करनी पएगी जिवें बाहर का जीवन जी के असीं करने। भाई साहब ने एक वचन क्या है, कहते इस जिंदगी तो अगे एक और जिंदगी है, वो जीवन की है। उसे उन्हें शब्द वरते ने गोर सिख संध मिले। संध का शब्द बने संध्या, संधि शब्द भी ये विचों संध का अखरी अर्थ होंदा जिथे दोनों का आके मिलाप हो जाए, वो पॉइंट जिथे दोनों मिलते हो। गुर सिख संध मिले, गुरु ते सिख दी जिथे मिलाप वाली गल है दोनों मिले ने। गुर सिख संध मिले बीस एक ईस ईस कह लगे जिस बंदे ने भी विश्व में जिहड़ा संसार है ये केवल एक परमात्मा नूं देखिया। साहब कहते गुर सिख संध मिले बीस एक ईस ईस इत ते उलंघ उत जाए ठहराइए। इस जीवन तो अगे इस बिरती तो अगे किते अपनी बिरती नूं गुरु दे चरनां विच शब्द विच जोड़ के देख। महाराज उत्थे की है, कह लगे उत्थे नेत्र खोलने नहीं पैंदे, आत्मिक जीवन मानन दे लई नेत्र बंद करने पैंदे, उत्थे जबान नाल बोलना नहीं पैंदा, आत्मिक तौर ते गल्लां करन लई जबान बंद करनी पैंदी है, उत्थे कन खोल के सुन दी लोड़ नहीं। जदों आत्मिक जीवन जिए सच जानी कन बंद करके भी तेरे अंदर आवाज आवेगी। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने एक वचन क्या है, आप कहेंगे जी एक ऐसा जीवन अखा बंद करके मुंह बंद करके कन बंद करके। कबीर साहब ने इस जीवन को क्या कहते, कबीर सतगुर सूर में बाया बाण जो एक कहते एक शब्द का तीर मारियो सो लागत गिर पोए गिर पड़िया परा करेजे छेक। हुण कहते आत्मिक जीवन शुरुआत होया, कबीर गूंगा हुआ बाबरा बहरा हुआ कान कि जेड़ी जबान अगे फटाफट दुनिया दियां गल्लां करदी सी हुण आत्मिक रस इन्ना आउण लगा कहते असल विच दुनिया वालों मेरी जबान गूंगी हो चुकी है। प्यारियो जितना मर्जी सी यतन करिए नूं चुप कराउण दा, अकल नाल चुप करावांगे ते बाबा जी बाणी विच कहंदे ने चुप है चुप ना हो गई, अकल नाल चुप ना करा इनू रस नाल चुप करा। अकल नाल चुप कीती कोई जबान कपट धारण कर जाती है, रस विच आई कोई जबान जिहड़ी आत्मिक आनंद देती है। जिहड़ा चुप आपां बाहरों केवल जबान नाल बोधक तौर ते करने आ उहनूं साहब कहंदे चुप है चुप ना होवी जे लाए रहा लिवतार ते जिहड़ा रस लैके चुप करदा है उहनूं भाई गुरदास कहंदे वाहिगुरु गुर शब्द लै तिरम प्याला चुप चुबोला। आखिर की सुख है कि गूंगा हुआ बाबरा बहरा हुआ कान पावों ते पिंगल भया मारिया सतगुर बन। गुरु ने पैरों तो पिंगला, अखा तो अन्ना, जबान तो गूंगा, कन्ना तो बोला कर दिता। ਇਹਦਾ मतलब ये सी कि जेड़ा जीवन असी अगे इन्हां इंद्रियां नूं बाहर ना जींदे सतगुरु ने इन्हां नूं उल्ट के अंतर्मुखी कर दिता। यदि व्याख्या भाई गुरदास जी कर रहे हैं। इस विषय को खुश्क ना समझो प्यारियो, जितने को गुरु जी ने सूझ बख्शी है
सच जानियो बाहर दियां गल्लां नाल दिल नहीं भरदा जिन्नी देर तक इस तो अगे जिंदगी जीनी शुरू नहीं करा। भाई गुरदास कह रहे ने गुर सिख संध मिले तीस एक ईस ईस इत ते उलंघ उठ जाए सहराइए चरम दृष्ट मूंद अपने इन्हां जिहड़े चम देखण वाले नेत्र ने ना इन्हां नूं बंद कर ले। इन्हां चम देखण वालियां अखां नूं कदी तू बंद कर। पता नहीं किन्ने को बुत किन्नियां को तस्वीरां इस अपने अंदर लैके बैठे। कई बार सोचना होना कि बाहर का कैमरा ओदी रील दी भी कोई लिमिट है, 25 कोई 30 कोई 35 कोई 40 फोटोआं खिंचेगी। असी मूवी बनाने इस कैमरे की भी कोई लिमिट है। पता नहीं परमात्मा मन वाले कैमरे ते अखां वाले लेंस नूं किन्नी को ताकत दिती आ, किन्नियां दे बुत अपने अंदर चकाई बैठा है, रोज चकांदा है। ये भरदा ही कोई नहीं, जदों अखां बंद करदा वो तस्वीरां फिर सामने आ जांदियां। कहंदे इन्हां नूं बंद कर। चरम दृष्ट मूंद चम वाली दृष्टि नूं बंद कर। महाराज की दसेगा? कहन लगे चम दृष्टि बंद करके नाल जप ते होवेगा कि चरम दृष्ट मूंद देखै दिल दृष्ट कह अगे दद दृष्टि पैदा होवेगी ते इहदे नाल होवेगा कि जग मग जोत उन मनी शुद्ध पावगी। देख तेरे अपने अंदर तेनू लट लट करदी कोई जोत दिसेगी। एक जोत अखां खोल के दिसदी है, प्यारिया अंदर वाली जोत नेत्र बंद करके दिसदी है। चरम दृष्ट मूंद देखै गरीब दिष्ट कह जगमग जोत उन मनी शुद्ध पावगी। अगला बचन न कीता सुरत संकोचित ही। जदों तू बाहर जीवन जीना ते सुरत नूं खिला के जीना ते जदों आत्मिक जीवन जीना अपनी सुरत नूं संकोच लै, अपने अंदर के ध्यान नूं इकाग्र कर लै। सुरत संकोचती बजर कपाट खोल नाद बाद पर अनंत लिव लावगी। प्यारिया जेड़े बाहर दे गाने तू सुनना, बाहर दे गीत संगीत सुनना है ना, सच जानी जदों अंदर दा कीर्तन सुनदी जाच आ गई, जदों अंदरों वैगुरु सुनदी जाच आ गई, बाहर दे संगीत बिल्कुल फिक्के पै जाते। बाहर दे संगीत की कोई कीमत नहीं रहेगी। ये भाई साहब भाई गुरदास जी का फैसला है और रंग रतड़े सिख ने कविता विच वचन क्या है, सुरत संकोचती बजर कपाट खोल। उत्थे फिर होवेगा कि अनहत लिव विच तू जुड़ेगा। वो लिव जिहड़ा निरंतर अंदर कीर्तन चले, शब्द चले। सुरत संकोचती बजर कपाट खोल नाद बाद पर अनहत लिव लावही। बचन विसर्जित अन रस रहत होवे। जदों अपनी जबान से काबू पा के अंदर दा रस चखेगा प्यारिया, फिर सुक्की रोटी भी अमृत बन जाएगी। जे आत्मिक जीवन नहीं जिएगा तो बाहर का 36 प्रकार का भोजन भी जहर बन जाएगा। मैं एक प्रमाण बाणी विचों अर्ज करा, कृपालू दाता जी ने जिहड़े आत्मिक जीवन जींदे उन्हां संबंधी एक वचन कहा सी। असल विच बाबा जी ना, बाबा नानक साहब सच्चे पातशाह सब ते मेल करते हैं, पर जिन्ना गरीब नूं गले ला लांदे ने ना, मेरा बाबा अमीर नवाज नहीं। चेते रखियो गरीब नवाज है गल वखरी कि सिख अमीर नवाज बन गया है। भाई लालो दे घर बैठदा है, मलक भागो दे तरलियां की परवाह नहीं करता ते स्पष्ट सामने कहंदा है कि तेरे घर की रोटी साडे अंदर नूं टिकन नहीं दे। तेरे घर की रोटी विच भी सानू खून है, खून दिसदा पिया ते दिखाया। मैं जी बेनती कर लगा, कृपालू दाता जी ने बाणी विच एक मेल भरिया वचन किया कि मैंने जेड़ा बंदा आत्मिक जीवन जींदा है, अंदर दा रस माणदा है, ओदे घर दी सुक्की रोटी मिल जाए ते गुरु ग्रंथ साहिब कहते वो सच जानो अमृत है ते रब तो टुटा होया कई कौलियां सजा के रख देना, सच जानियो ओदा भोजन जहर की तरह है। बंदगी करने वाला अपने तन की पाटी कोई कंबली भी सट जाए किसी के तन ते वो पाटी कंबली लोक पर लोक पत ढक दिए ते सच जानियो रब तो टुटा होया रेशमी पोशाके भी दई जाए, सरपाओ भी दई जाए, खिमा करियो वो सरपाओ जेड़े ने वो पोशाके जेड़े ने वो पत मिट्टी विच रोल देंदे। हजूर ने बाणी विच वचन कीता, कहने लगे संतन का दाना रूखा। हुण दाना ते दाना ही है, जिहड़ा 36 प्रकार का भोजन बनया वो अन्न नहीं प्यारे, अन्न इको जिहा है पर जिहड़ा जीवन है वो इको जिहा नहीं। संतन का दाना रूखा सो सर्ब निधान, ग्रह साखत 36 प्रकार के दिखू समान। भगत जना का लूगरा ओढ़ नगन ना कोई,
साकत सिर को रेशमी पैर पत कोई रब की बंदगी करने वाला, क्योंकि वो आत्मिक जीवन जी लिया है। मैं अर्ज जी करना पिया, इस रसना नू दुनिया के रस तो उठाना चाहने ते परमात्मा के नाम रस भी जुड़ जा। हजूर कह रहे हैं बचन विसर्जित अन रस रहत हवै निटर धार अपार अप्यो प्यावगी। प्यारिया फिर तेरे अंदर वो रस आवेगा जेड़ा तेरे दुनिया के रसा नू फिक्कियां पा देगा। मैं बेनती जी कर रहा, पहली बेनती है रब नू साई नू भुला देना गुरु की नजर विच एक मौत है। बाबा जी की बाणी विच प्रमाण है। हजूर कहते ने अमृत बचन जिन हर हिरदय नाम ना बस्यो तिन मात कीजै हर बांझा तिन सुंझी दे तेरा बिन नाम है कोई खप खप मुवे करंज। हजूर फरमाते ने हर बिसरत सदा खुआरी ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारी। बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अड़जारी। सिमरन तो बिना जिंदगी इस तरह जिवें सप की जिंदगी है। सप जिन्नी उम्र बढ़ती है उन्ना जहर होर घोलता है। बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। नव खंडन को राज कमावे अंत चले वो हारी। नाम तो बिना जिंदगी नहीं। बाबा जी बाणी विच बचन करते हैं मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो ना बिना त्रिग त्रिग स्नेहो। नाम बिना जो पैरे खाए वो जिंदगी नहीं जो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या श्रृंगार। नाम पिसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन में रोग वो असल में जिंदगी नहीं। नाम नू भुला के सच्चे पातशाह मेहर करते ने पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संगलिया। तू जिन्नियां मर्जी लुडियां पाई जा जिन्ना मर्जी तू नची जा सच्चे पातशाह कहते नाम तो बिना मिट्टी विच रुड़ जाएगा। पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया। कान कुंडलिया कन्ना विच तू सोने दे कुंडल भी पाई फिरेगा। ठीक है दुनिया विच तू अपनी रस्म अदातियां करना है फैशन प्रस्ती विच पिया है। साहब सच्चे पातशाह ने मुद्दत पहला बचन कह कान कुंडलिया बस्त्र उडलिया शेज सुखलिया मन कर बलिया तले कुंचरिया थले बड़ा कीमती हाथी है। सिर कनक छतरिया ते सिर दे उत्ते सोने दी छतरी है। हुण देखो इन्ना सुख किसे कोल होवे वो जवानी दे नशे विच चूर नचे भी वो गाए भी वो टप्पे भी ओदे घर विच बस्तर भी होण शेज भी होवे चंगी सवारी होवे ते सिर दे उत्ते सोने दे छतर झुलदे होण। साहब कहंदे जीवन नहीं सच जानी वो बंदा तो इस तरह जिवें एक खाक दा पुतला खलोता हो। पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया। कान कुंडलिया बस्त्र उडलिया शेष सुखलिया मन गर बलिया तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बिर बिना ले तरण बिडरिया। एक वो जीवन है साई भुल जाए आत्मक मौत है ते बाणी विचों उन्हां दे दीदार करो जेड़े एक सवास भी रब नूं भुलांदे। उन्हां दा जीवन ही सिमरन है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचन ने गुरु नानक साहिब जी ने एक प्रमाण दिता बहुत सोहना। जे पुछया दाता कोई अद्धा घंटा सिमरन करके कोई एक घंटा सिमरन करके अंदर की तृप्ति नहीं। सच्चे पातशाह ते प्रमाण देंदे कि सिमरन ही जीवन है। हजूर बख्शिश करते ने कि मारूथल की धरती है रेत तपदी पई ते जे सवेरे उस मारूथल विच मीह पै ते ये कह दईए भी हुण इत्थे मीह की जरूरत नहीं। कह लगे मीह खत्म की देर है रेत फिर सुकी उडेगी। मारूथल विच जितना मर्जी मीह पै जाए वो कभी मारूथल रजदा नहीं। साहब कहते अग बलदी होवे। देखो जिन्हें सिमरन नूं ही अपना जीवन बना लिया है सिमरन ही ओदा जीवन है। हजूर कहते मारूथल विच रेत नहीं रजदी अग बलदी होवे ते लकड़ा कोले पा के कहिए अज सारा दिन लकड़ा पा दिओ ते अग शाम नूं रज जाएगी। सच्चे पातशाह मेहर करते ने प्यारिया जितनियां मर्जी लकड़ा सटी जान अग ने कभी नहीं रजना। अग ने होर तड़पना है। तीसरा कृपाण कृपालू कृपालू दाता जी ने दिता किन्ने एक बंदा राजगद्दी ते बैठा ओदे ते बजुर्गी आ गई मरण किनारे ते वे जे ओदे अंदर दी खबश नूं देखो ते खिमा करियो ओदे अंदर दी जिहड़ी तड़प ओ कदी भी राह छड्डण नूं तैयार है। मैं खिन अर्ज करा
शरीर जर्जरी हो सकता है, उम्र ज्यादा हो सकती है, पर वासना कभी भी पुरानी नहीं होंगी। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक शब्द है भगत जी का, उन्होंने वचन किया कि मैं वो बंदा देखिया जिदे केश कमल के फुल वर्गे चिट्टे चिट्टे केश हो गए, अखां ओदियां दा जोत चली गई, पानी वगदा, अखां भी सुक गई ने, कन ओदे सुनते नहीं, ते जदों जदों किते बोलदा इन्ना धीमा बोलदा, इंज लगदा जिवें सतवें पताल विचों बोलदा होवे। मेरी बेनती समझो कि गुरसिखो ये मन की हालत की है जो बाबा जी ने बाणी विच कहा है, क्योंकि गुरबाणी एक शीशा है। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के सामने जाने हैं ना, साडे चेहरे नूं शीशा दस दिंदा भी तू इसे करके खलोता है। जे करूप है तो शीशे ने करूपता ही दसनी है। भाई गुरदास जी ने वचन क्या कहने लगे, जो कर निर्मल आरसी जग वेखण वाला, जे हा मुंह कर भालिए ते ओ देखाला। जियो जो चेहरा लैके जाएगा बाबा जी ने वो कोई तेरे चेहरे में दिखा दे। उत्थे उन्हें वचन क्या कहने लगे, पुंडर कुसम बंदे दे केस जेड़े ने वो कमल के फुल वर्गे चिट्टे हो गए, बिल्कुल केस जेड़े ने दाढ़ी पूर हो गई। पुंडर कुसम केस ते भौले, सप्त पताल की बाणी जदों बोलदा इंज लगदा सतवें पताल चो बोलदा, लोचन शर्म है, अखा थक गई, पानी सो गया, बल बुद्ध ना थी, ओदा शरीर दा बल चला गया, गल करदा ते भुल जांदा, कहंदा अकल चली गई। साहब कहंदे ने वासना नूं पुछ के देखो, काम पवत मदानी, ओदे अंदर काम दी वासना अजे भी भटकदी पई, क्योंकि शरीर दे पुराने होण नाल वासना पुरानी नहीं हुंदी। वासना नूं जे कोई मिटा सकदा ते केवल गुरु का शब्द। एक दिन अर्ज कीती सी, अटैचमेंट ही डिटैचमेंट पैदा करेगी। जे असीं जुड़ते नहीं तो वासनावां तो टुट किवें जावांगे, भुलेखे विच ही है ना। नहीं जी सानू कभी काम नहीं बुरिया, कभी लालच नहीं बुरिया, क्यों? हाँ, जे तू जुड़ गया शब्द ही उन्होंने मिटा सकता है, जुड़न तो बिना टुटिया नहीं जा सकता। कुदरत का नियम है। बाबा जी ने बाणी में कहा, ये रस छाटे वो रस आवा, वो रस पिया ये रस निभावा, क्योंकि मन ने रस मंगना ही मंगना है। वासना की थां ते रूहानियत का रस हो जाए तो वासना अपने आप खत्म हो जाती। कृपालू दाता जी के अमृत बचना वाल आप आइए। हजूर ने मेहर की, कहते पानी वरसदा होवे मारू छल नहीं रजदा, अग बलदी होवे ते लकड़ा पाई जो अग नहीं रजदी, राज गद्दी ते बैठा होया बंदा अंतले सवासां तक भी मरदा भी गद्दी नहीं छड़दा। ते जे कोई नदियां भर भर के समुद्र विच पई जाण ते की कभी नदियां कहणगियां असीं समुद्र नूं भर दित्ता। इत्थे महापुरुषां ने दो अर्थ कीते, कहते नदियां का पानी सारा दरिया समुद्र विच आ जाए, सदियां हो गई समुद्र विच नदियां दरिया पैंदे ने, कभी किसी कहे कि अज तो बाद पानी नहीं उत्थे जाना क्योंकि समुद्र रज गया, इन्ना पानी लैके भी समुद्र नहीं रजिया। दूजी गल कि जे सोका पै जाए तो की समुद्र सुक जाएगा? जिन्ना मर्जी पानी उत्थों उठ आ जाए फिर उन्हें भरिया जाना। सच्चे पातशाह मेरे कहते हैं, जे तू मेरे सिमरन बारे पुछना, धन गुरु नानक साहिब जी कहते ने, नींह पे मारू छल नहीं रजदा, बालन नाल अग नहीं कदी रजदी, राज करके आदमी कदी नहीं रजदा, समुद्र पानी जितना पै जाए कदी रजदा नहीं। सच जानी जे नाम बारे पुछना, जे रब कई युग साल कई करोड़ा युग जिंदगी दे दे तो जप जप के अंदर रजना नहीं, क्योंकि नाम ही जीवन बन गया। सच्चे पातशाह के वचन ने कहने लगे, मारू मी ना तृप्तिया, नाम ही जीवन है। मारू मी ना तृप्तिया, अगी लह ना भुख, राजा राज ना तृप्तिया, सायर भरे के सुख। कहने लगे प्यारिया, नानक सच्चे नाम की चेती पुछा पुछ। कभी देखो जदों सिमरन करने वाला जिहदा जीवन सिमरन बन जाए, वैगुरु वैगुरु जपे, ओदी जिंदगी ही दाते दे चरनां विच जुड़ जाए। गुरमुख बैठे ने, गुरमुख सिक्ख्या विच एक दिन बहुत सोहना बचन पढ़िया भी ते सुनाया भी, मैं आप नाल जरूर साझा कर दे। गुरमुख सिक्ख्या भाई साहब भाई वीर सिंह हुणां दे अपने जीवन नाल संबंधित कुछ घटनावां ने, उन्होंने एक बड़ी सोहनी गल कही, पिंड का जिक्र नहीं किया, बस इन्ना कुछ शब्द किया कि लुधियाने तो कुछ मील दूर एक पिंड है, उस वेले की उन्हें गल की कहते ने, उत्थे एक जिमीदार नूं नाम की चेचक लगी। लगी किवें
कि एक दिन अपनी खूह की गादी ते बैठा सी ते टिंडां वाला खूह बलद हकदा है, पानी टिंडां विचों बाहर आउंदा है, खेत सिंजदा पिया है। इन्नी देर नूं कहंदे ने कोई रमता साधु आ गया। ध्यान दिया कि जदों सिमर ही जीवन बन जाए, रमता साधु आया। उस फकीर ने क्या जट नूं, जिमीदार नूं, जटा भले लोका प्यास लगी है, मैनूं पानी पिला दे। बचन सुने फकीर दे ते मन विच आया मना कि फकीर आया है, किते नूं भुख ना लगी होवे। हुण मेरे कोल है कि कोल खूह ते बजी सी गां, उन्हें झपदे ही छेती नाल गां झोली। कहंदा फकीर बाबा थोड़ा समा जा रुक जा। जदों रुक गया उन्हें गां चोई ते टिंड विच जिहड़ा पानी पाया सी उस पानी दे विच दुध पा के कच्ची लस्सी बना दित्ती। नाले फकीर नूं कहंदा लै बाबा आ पी। फकीर ने वो कच्ची लस्सी पीती ते पीण तो बाद कहंदा जट नूं, जिमीदारा तेनूं किवें पता सी मैनूं भुख भी लगी है? तेनूं किवें पता सी मैं अंदरों मैनूं भुख लगी है? ते जिमीदार कहंदा बाबा जी, संत जी, महापुरुषो, मैं तो सीधी जी गल जानना कि तुसी आए सो, पानी मंगिया मेरे कोल पियाण वास्ते केवल ये सी ते मन ने कहा चल गां चोर टिंड विच पा ते कच्ची लस्सी पिया दे, गर्मी दे दिन ने। कहन लगे आज जो कुछ तेरे कोल सी तू सानू दे दिता, आज जो कुछ साडे कोल सी तेनू दे दे। हुण देखो जदों किते रब मेहर करे, पता नहीं जिंदगी दे किहड़े मोड़ ते किस कमाई वाले ने टक्कर जाना है। हर वेले अपने भांडे नूं, कभी बाबा नानक जी का शब्द जदों मैं पढ़ना कहंदे कर कासा दर्शन की भूख, जिहड़ा शब्द आरंभ होंदा है भौ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तुक है कि कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगू नीता नीत, तो दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीखा पाए। कहते हाथ में खप्पर पकड़ के तुरिया ते उच्ची उच्ची होके देना, कोई रब दे दर्शनां दी खैर मैनू पावे। पता नहीं जिंदगी दे किहड़े मोड़ ते करनी वाला कोई टक्कर जाना। हाँ अंदर दी जिज्ञासा होवे, जे चाह है ते राह जरूर मिलेगी। तीन शब्द कभी भुलिए ना, चाह है ते राह है, जे राह है ते रब दी दरगाह है। जिदे कोल राह नहीं उन्होंने दरगाह किथे मिलनी है, जिदे कोल चाह नहीं उन्होंने राह किथे मिलना है। कहने लगे आज जिमीदारा तेरे कोल जो कुछ तू दे दिता, अस मेरे कोल जो है मैं तेनू देना। सामने बिठा के कहने लगे कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जदों क्या जिमीदार दे अंदर दे भाग जागे, उन्हें पीछे क्या वाहिगुरु वाहिगुरु कहन दी देर सी। कह लगे बस हुण जपी जा, मेरे फकीर कोल कल्ला आ कुछ सी। रब ने इहो जी मेहर की, बहिंदिया भी वाहिगुरु, उठदिया भी वाहिगुरु, हल वांदिया भी वाहिगुरु, खूह नूं गेड़दिया भी वाहिगुरु। इन्नी दाते की मेहर हो गई, लोग पैलियां वाह वाह के खाद पा पा के फसल बीजन तो सीधा जिहा हल वाए ते छट्टा देंदिया कही जाए वाहिगुरु वाहिगुरु, ते जदों फसल पकण दा वेला आवे ते ओदी फसल दूजिया खेतां नालों वध निकलदी। परमात्मा दी खेत ओदी फसल वध निकलदी। लोकी चार चुफेरे पता लग गया, खूह ते बह गया, वाहिगुरु वाहिगुरु दिन रात करी जाए, सब कुछ नूं भुल गया, केवल वाहिगुरु चेते रह गया। ते उस वेले कहते ने एक महापुरुष सन संत ईशर सिंह जी, निर्मले महापुरुष, हरद्वार रहन वाले, ये बड़ी करनी वाले सतपुरुष सन। चार वेदां दे ज्ञाते सन ते कल्ले ज्ञाते नहीं, असल विच अंदर दे भी ज्ञाते सन, अंदर दे ध्यातड़ भी सन। ते उन्हां बारे उस पुस्तक विच लिखे कि महाराजा हीरा सिंह नाभा ने 1 लाख रुपया दिता उस करनी वाले साधु ने, क्या चुक के लै जा मेरे किसका। कहने लगा महाराज किसे क्या हीरा सिंह वर्गा दानी कोई नहीं लभना। कहने लगे जा चला जा, फिर साडे वर्गा त्यागी भी कोई नहीं लभना। नाल एक शब्द क्या कहने लगे, जे हरद्वार तो लैके नाभे तक तू सोने दियां अशरदियां भी विछा दे राह च। कहना बाबे नानक की कृपा नाल मैं उन्हां सड़क नूं सोने नाल मड़ी हुई राह नूं नहीं तका। जिहड़ा अंदर दा सुख बाबे दिता है, अंदर दे सुख की कीमत कभी कोई पा सकदा है? कीमत उदों पैंदी है जदों बंदा अंदरों खाली हुंदा है, भरे होए दी कीमत किसी ने की पा लेनी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी ते बाणी पढ़दे बाबा जी ने ते कहन लगे गिरहा छेती माल धन कीड़ी तोलना होनी,
जे तिस मनो ना विसरे। कहते वो महापुरुष आए उस जिमीदार के खूह ते आए, देखा वाहगुरु वाहगुरु जपे, ओदा रोम रोम गुरु गुरु करे। तो उन्हें आके क्या कह लगे, जिमीदारा तू वाहगुरु वाहगुरु जपना है? कह लगा मैनू दसन वाला यही दस गया कि केवल वाहगुरु वाहगुरु जप। कह लगे तू छड़ देखा? कहता सच जानी छड़ा ते मेरी मौत हो जाए, मैं छड़ दिता ते मर जावांगा, क्योंकि मेरा जीवन ही केवल हुण नाम बन गया है। सच्चे पातशाह बाणी विच कहंदे मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम त्याहे, आखा जीवा विसरे मर जाऊं, आखन औखा साचा नाम। वो नाम ही जीवन है। कबीर साहब महापुरुष कहते हैं मेरी मां के जब लग तागा बाहो बेही तब लग बिसरा राम से नहीं, अद्धा साख ते रब भुल जाए ते जिंदगी व्यर्थ है। जिन्होंने परमात्मा की याद भी जुड़े उन्होंने सिमरन नूं ही अपनी जिंदगी बना लिया। बाबा नामदेव जी का एक बचन आता है गुरु ग्रंथ साहिब के गौण राग विच, ये शब्द है मोहे लागती ताला बेली। ताला बेली का खरी अर्थ होंदा तिल मिलाहट। कहते मेरा अंदर कल्पदा जो नाम भुलता है। तो देखो जेड़े आप बैठे हो सिमरन करने वाले, न्याणे भी वही ने, इस्त्री भी वही है, पति भी होवे, घर के जी भी वो ने। तो जदों किते अंदरों तोट पैंदी है तो बंदे का अंदर का गुस्सा घर दे उत्ते निकली जाता। उसका कारण पता कि अंदरों जेड़ा टुटदा है, अंदर लुढ़चदा है। बाबा नामदेव ने 3-4 जेड़े प्रमाण लै कहंदे ने जिवें गां दा वछा ਉਹਦੇ ਤੋਂ दूर लै जाइए वो किले के उत्ते चक्कर लाती है, ਉਹਨੂੰ पुछो ਉਹਦਾ अंदर किन्ना तड़पदा लुढ़चदा है। कि मैं सच जानी मेरे साइया जदों तू भुलना मेरी हालत भी ये हुंदी है। मोहे लागती ताला बेली बछड़े बिन गाय अकेली, पानिया बिन मीर तलब है। प्यारियो एक है जीवन, पानिया पानी तो बिना मच्छी तड़पदी, पानिया बिन मीर तलब है। ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा। कहते जदों जपना उदों वो सुख होंदा है जैसे गाय का बाछा छूटला, थन चोखता माखन घूटला। जिमें वो दुध चुंगदा रस लै लैके, ते हे प्रभु जदों मैं तेरे नाम नूं जपना रस लै लैके मैनूं अंदर दा सुख मिलदा है। गाय का बाछा छूटला, थन चोखता माखन घूटला। जैसी दिखे हेत पर नारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। जैसे ताप ते निर्मल कामा, ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा। जिवें तपदी कोई धुप विच पिंडा सड़दा है, तेरा नाम भुल जाए ते अंदर सड़दा है। इसदा मतलब इस जीवन तो अगे कोई होर जीवन है। उस जीवन नूं अज बाबा जी ने बाणी विच फरमाया ते कहन लगे मरण बिसरण गोबिंदा है। जदों गोबिंदा का अखरी अर्थ है धरती नूं सहारा देने वाला परमात्मा, जदों वो विसर जाए असल विच उदों मौत है। मरणन बिसरणन गोबिंदा है। परमात्मा वाहिगुरु जी तुहाडी याद भुल जाए मौत है। जीवनन हर नाम तिहावण है। जीवन केवल है जदों तेरे नाम नूं त्याया जाए, तेरा सिमरन किया जाए, उदों ही असली जीवन है। साहब कह लगे ये अवस्था मिलती है लभन लभ जाती है किथों? साध संगेण। साध संगेण साध संगत विचों। हुण साध संगत आप सारे कर रहे हैं, हर गुरुद्वारे साध संगत होंदी, गुरु रूपी साध संगत भी कहने, संगत हर प्रवक्षा भी कहने, पर नाम क्यों नहीं चलता? अंदर क्यों नहीं तब्दीली होंदी? मैनूं खिमा करियो, क्योंकि इस संगत विच बैठे खोए भी उस थां ते नहीं बैठते जिहड़ी संगत बाबा जी ने कही है। मन नहीं ना संगत करदा। हुण साध दा आखरी अर्थ जिन्हें अपने अंदर नूं साधिया है, जिन्हें अपने अंदर नूं पूर्ण तौर ते टिका लिया है। प्रोफैसर पूर्ण सिंह का एक बचन कहते हैं जदों तुसीं सिमरन करदे उच्चा ते कई बारी मेरे अंदर वो फुरना वो ख्याल आउंदा है। उन्हें एक लेख लिखिया सी बहुत समा पहला माई बाबा, उहदा उलथा किया गया मैंडा बाबा। वो कहता सिखा जदों तू गुरुद्वारे आके मत्था टेकना है ना, नेत्र बंद करके तू गुरु गुरु जपना है या सुनना है, उदों तेरा बाबा उत्ते खलो के हर एक नूं वेखदा पिया है। कैसे बचन कमाल ने कहते बच्चे पढ़ते ने उस्ताद खलो के वेखदा है। जदों तू वाहगुरु वाहगुरु जपना ते तेरा गुरु नानक साहब वेखदा है, तो उस वेले अंदर नूं टिका के चरण पकड़ तेरे सिर ते हथ रख के तेरी सुरत नूं अपने नाल ही लै जाए। आखिर वो केड़ा आनंद है संगत का। तो उसे कहता बाबा
मैनू अपनी संगत विच बिठा, बैठिया बैठिया वर्मी तन ते जम जाए, हरन आउण मेरे पिंडे ते आके 12 सिंगा सिंह मारे ते तां मैनू पता न लगे मैं इहो जिहा उडोल बैठा हूं। असल विच वो जीवन है साध संगीन, जिस संगत विच गुरु गुरु जपिया जाता है, जिथे एक नाम की गल है, कह लगे लभना लभ जाएगा। साध संगेन रब के प्यारियां की संगत विचों ते सच्चे पातशाह इहो जिहे करनी वालियां की संगत किनों मिलती है? कहते पूर्वले जिहड़े लिखा के आए होंदे नानक हर पूर्व लिखण है, जिन्हां दे मस्तक दे पूर्व दे लेख लिखे उन्होंने ये दात मिलती है। आओ गुरु मेहर करे अपने अंदर नूं आपां टिकाइए। इस वेले अंदर बनिया है, जमीन बत्तर पे आई होंदी है, अरदास करिए सच्चे पातशाह किते किनका मात्र अंदर उग पवे। करो कृपा और उचारण वाह